Good morning, students. Today we are going to start our ENV of Standard 5th. The name of the chapter 2 is All Together. Now, the story is given as below. Environment, it provides us food, water and air. Environment हमें क्या provide करता है? फूड, वाटर और एयर. बट हम लोग काफ़ी टाइम्स क्या करते हैं, इन तीनों चीज़ों का मिसयूज़ करते हैं. और which other things are provided by the environment? That is, environment provide us land to grow food and to build houses. हमें environment और क्या देता है? Land, जिसपे हम लोग खाना grow कर सके और घर बना सके. These are the facilities which are provided by the environment. पर क्या हम इन चीज़ों को preserve और maintain करते हैं? Do we really maintain and preserve all these things of environment? So this is a question we should ask ourselves. क्या हम लोग सच में इन चीज़ों को preserve करते हैं और maintain करते हैं? Now we can see our country, India, that is rich in diversities. Diversity means there are many things available existing in a group. Like we can say we have seen different religion. अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, हम लोग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग स्टेटस है हमारा. So all these are kind of diversities. All these diversities are there. ये सब अलग अलग टाइप की diversities है. But हम सबको फैसिलिटीज़ कैसी हैं? इक्वली मिली है. क्या हम सबको अलग अलग फैसिलिटीज़ मिली है? नो, वी आर गेटिंग ऑल इक्वल फैसिलिटीज़. सो हमें ये सोचना चाहिए कि हमें ये फैसिलिटीज़ कहाँ से मिली है और हमें उनको कैसे यूज़ करनी चाहिए. कौन सी फैसिलिटीज़? जो फैसिलिटीज़ हमको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है. नाउ हियर अ स्टोरी इज गिवन बिलो. Now, as you can see in this picture, a boy, his name is Aryan. Where he came? अब आर्यन कहाँ पे है? He came to Ahmedabad. He came to Ahmedabad alone for the first time. And where he will stay now? अब वो अहमदाबाद में अकेले कहाँ रहेगा? And from where he will get the food? और उसे खाना कौन प्रोवाइड करेगा? All the basic facilities which are provided to us by our parents. हमें जो बेसिक फैसिलिटीज चाहिए वो हमें कौन प्रोवाइड करता है? घर में पेरेंट्स. बट यहाँ पे उसकी हेल्प कौन करेगा? वो अकेले कैसे रहेगा? अपने आप को कैसे मैनेज करेगा अहमदाबाद में? दिस इज द स्टोरी इन दिस पिक्चर. नाउ द in this picture we can see the boy he came to the Ahmedabad for the first time. And अब वो कहाँ बैठा है? रास्ते में अकेला बैठा है. बिकॉज कोई भी नहीं है वहाँ पे उसकी देखभाल करने के लिए, क्योंकि वो वहाँ पे अकेला है. अब उसने कहाँ पे रहना चालू किया है? ही स्टार्टेड लिविंग इन द पाइप. वो एक पाइप के अंदर अकेले रहना लगा है. सडनली उसको एक फ्रेंड मिलता है जो उसकी हेल्प करता है. एंड नाउ दे बिकेम्स अ वेरी क्लोज फ्रेंड एंड दे लिव वेरी हैप्पीली विथ ईच अदर. They started living very happily with each other. Now in this picture we can see now lady, she's selling grains to the man. और वो man कहाँ लेके जाता है? होलसेल मार्केट में, जहाँ पे he selling to the another person. Again we can see in the second picture the lady, she is purchasing the vegetables from man. Next picture we can see she is grinding the flour, as we can see in the picture also now. And नेक्स्ट पिक्चर वी कैन सी शी इज kneading the dough. kneading the dough means वो आटा गूंद रही है. एंड फाइनली लास्ट पिक्चर में वो क्या कर रही है? शी इज मेकिंग द फूड फॉर आवर फैमिली. सो ऑल दीज थिंग्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर. ये सारी चीज़ें क्या है? फ्रॉम फर्स्ट पिक्चर से लेकर टिल लास्ट पिक्चर तक ये सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं. एंड here a story is given, a new story is given now. In this story a girl, Rupal, she is there. Rupal hai, what she wants to do? She lives in a village and she wants to go to the school, but her father doesn't allow her to go to the school. क्या चाहिए रूपल को? वो स्कूल जाना चाहती है बट उसके फादर उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं पढ़ने के लिए. Why she cannot go to the school? क्यों वो स्कूल नहीं जा सकती है? She wants to go to the school. She wants to enjoy with the children. She wants to play with them, but she cannot go to the school. So what can be done? क्या रीज़न है कि वो स्कूल नहीं जा सकती? वो दूसरों बच्चों के साथ नहीं खेल सकती? As we can see in this picture now. Why she cannot do all these things? क्योंकि उसको पोलियो है. दिस इज पोलियो क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ डिजीज जो उसको बचपन से ही है. सो सर एक दिन एक ऑर्गेनाइजेशन उसे व्हील चेयर प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से वो डेली स्कूल आती है.
और उसके साथ उसको कौन लेके आता है स्कूल में? उसका नेबर. ही इज कमिंग टू द स्कूल विद द हेल्प ऑफ विथ हिज नेबर फ्रेंड. नाउ शी इज ऑल्सो हैप्पी, हर फैमिली इज ऑल्सो हैप्पी, एंड टीचर्स एंड फ्रेंड्स ऑल आर हैप्पी दैट रूपल इज गोइंग टू द school and she's enjoying the school life. As we can see in the last picture, Rupal is going to the class, she's answering in the class, she's enjoying her studies. क्या करती है वो? अपनी studies को भी enjoy करती है. she's answering, she is singing in the class, so she's happy to go to the स्कूल. एंड एवरीबडी जो भी है वहाँ पे क्लास में या सराउंडिंग्स में, वो हर कोई रूपल की हेल्प करना चाहते हैं. Now in this thing we can see various professional कैसे in this picture we can see man is digging the soil. क्या कर रहा है इस स्टोरी में? हम लोग जैसे फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं कि मैन क्या कर रहा है, वो सॉइल को डिग कर रहा है. डिग करने के बाद व्हाट इज डूइंग, ही इज टेकिंग द सॉइल ऑन द डोंकी टू हिज वर्क एरिया प्लेस. कहाँ पे लेके जा रहा है? जहाँ पे वो जाके काम कर सकेगा. अब उससे वो क्या कर रहा है, उस सॉइल से ही स्टार्टेड मेकिंग द पॉट्स. उसने पॉट्स बनाना स्टार्ट किए. नाउ वो क्या कर रहा है, अब वो पॉट्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है, एंड फाइनली वो ट्रांसपोर्टेड पॉट्स कहाँ जा रहे हैं? सेलिंग मार्केट में. इन दिस वे नाउ वी कैन सी दैट वेरियस प्रोफेशनल कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं. लेट अस सी कि हम लोग अलग अलग प्रोफेशनल एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होते हैं. लाइक जैसे पॉटर है, वो क्या करता है, वो हमारे लिए पॉट्स बनाता है. ही मेक्स पॉट्स फॉर अस. ड्राइवर क्या करता है, ही ट्रांसपोर्ट पॉट, वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है पॉट्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में. बिजनेसमैन क्या करता है, ही सेल्स द पॉट इन द मार्केट. इन द सेम वे नेक्स्ट एग्जाम्पल इज गिवन ऑफ आइसक्रीम. आइसक्रीम हमें कहाँ से मिलती है? एनिमल हस्बेंड्री से. हम लोग क्या करते हैं एनिमल हस्बेंड्री में? उनसे मिल्क एक्सट्रैक्ट मिल्क करते हैं. देन बिजनेसमैन क्या करता है, ही स्टार्ट्स मेकिंग द आइसक्रीम. फाइनली वेंडर क्या करता है, वो आइसक्रीम को मार्केट में सेल करता है. अगेन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज गिवन ऑफ क्लोथ्स. क्लोथ्स कौन लेता है? टेलर. टेलर किसको सेल कर रहा है? ही इज सेलिंग टू द शॉपकीपर. एंड फाइनली शॉपकीपर क्या कर रहा है, वो वॉशरमैन को दे रहा है वॉश करने के लिए. सो वी कैन सी हाउ द वेरियस प्रोफेशनल कैसे एक दूसरे से कनेक्ट है, हाउ दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर. इन दिस थिंग वी हैव सीन दैट. नाउ द एग्जाम्पल लाइक डोंकी, potterman, how they all are connected and they provide, and finally potterman is providing a cool water to us. जैसे हमने इन सब एग्जाम्पल्स में देखा कि वेरियस प्रोफेशनल एक दूसरे से कनेक्ट है और हमको सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल होती है. सो हमें सोचना चाहिए, आर वी हार्मिंग अवर एनवायरमेंट or the resources we are getting from the environment? Yes. So it's our duty to preserve and protect our environment, which is a giver of all the necessities of our lives. And now at last a slogan is given that many hands make light work. means सब हाथ अगर मिल जाएंगे तो हमारा काम क्या हो जाएगा, बट जाएगा, हमारा काम फटाफट जल्दी से फिनिश हो जाएगा. इफ वी ऑल वर्क टुगेदर सो आवर वर्क विल बी फिनिश ऑन time. For example, if you want to move any furniture from one place to another place, that needs if 4 persons are helping, we can easily move that furniture from one place to another place. And next slogan is given, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल. जब हम लोग मुसीबत के टाइम में जैसे खड़े रहेंगे साथ में तो हमारी जीत होगी. नाउ लेटेस्ट एग्जाम्पल इज ऑफ कोविड-19 एज वी कैन सी. अगर हम लोग सब जने मिलकर इस टाइम में खड़े रहेंगे तो हम लोग इस टाइम से भी गुजर जाएंगे. ये डिफिकल्ट टाइम जो हमारी लाइफ में है उससे भी हम लोग पास कर जाएंगे. एंड अगर इफ विल स्टार्ट फाइटिंग विथ ईच अदर वी विल फेस मैनी डिफिकल्टीज इन द लाइफ. सो अ बेस्ट स्लोगन इज गिवन दैट यूनाइटेड. मुसीबत के टाइम पे हम सबको एक साथ खड़ा रहना चाहिए एंड उस सिचुएशन की ओवरकम करने की कोशिश करनी चाहिए. विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर. थैंक यू.